ابراہیم کے گھر فرشتے آئے ہیں۔ سارا ہستی ہے، سارا خدا کی مرضی پر ہستی ہے۔ میری مجال جو میں خدا کی مرضی پر شک کروں۔ اسحاق، اس کا نام اسحاق ہوگا، یعنی مسکراہٹ۔ I will give to you and to your offspring forever. I will make your offspring like the dust of the earth. روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت ہی خوشدلی سے لوگوں کی مہمان نوازی فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن دو فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس مہمان بن کر تشریف لائے۔ سلام و کلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے بھنا ہوا بچڑا پیش کیا اور پھر ان فرشتوں نے خود کو ظاہر کر دیا۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم اور آپ کی زوجہ حضرت سارہ کو ایک نیک اولاد کی خوشخبری سنائی۔ یہ سن کر آپ اور آپ کی بیوی حیران ہوئے اور فرشتوں سے فرمایا، اتنی بڑی عمر میں اولاد ہونا عجیب و غریب ہے، ہمارے ہاں کس طرح اولاد ہوگی؟ فرشتوں نے کہا، یہ اللہ کی طرف سے سچی بشارت ہے کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور آپ اس سے نا امید نہ ہو۔ لہذا بی بی سارہ اس رات حمل سے ہوئی جس رات قوم لوط کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہلاک کرنے اور ان پر عذاب الہی لانے کے لیے فرشتے تشریف لائے تھے۔ مدت پوری ہوئی اور سارہ کے بطن سے اسحاق علیہ السلام اس دنیا میں یوم عاشورہ کے دن تشریف لائے۔ آپ کا چہرہ مبارک پر نور تھا جس نے آس پاس کے ماحول کو جگمگا دیا۔ ولادت کے فوراً بعد ہی آپ زمین کے جانب جھک گئے اور اپنے پاک پروردگار کو سجدہ کیا۔ حضرت ابراہیم نے شکرانے کے طور پر فقیروں اور مسکینوں کو بلایا اور انہیں کھانا کھلایا۔ اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 120 سال اور بی بی سارہ 100 برس کی تھی، جبکہ آپ کے بڑے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام اس وقت 14 سال کے تھے۔ اسحاق سریانی یا عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہسمکھ اور خوش و خرم ہے۔ اللہ نے حضرت اسحاق کو روشن، منور اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا۔ آپ کا چہرہ بہت ہی خوبصورت تھا، رنگت سفید تھی جس میں سرخی جھلکتی تھی، ناک مبارک پتلی تھی، داڑھی گھنی نہ تھی، سر اور داڑھی مبارک کے بال سفید تھے، بہترین گفتگو کرنے والے تھے اور سیرت و صورت میں والد محترم حضرت ابراہیم کی طرح معلوم ہوتے تھے۔ حضرت اسحاق جوان ہوئے تو آپ کے والد حضرت ابراہیم نے اپنے بھائی کی پوتی بی بی رفقہ سے آپ کا نکاح کروا دیا۔ اس وقت حضرت اسحاق کی عمر تقریباً 30 برس تھی۔ آپ علیہ السلام حلم اور صبر والے تھے، وعدے کے سچے اور نماز کے پابند تھے۔ مورخین کا بیان ہے کہ سب سے پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام نے ہی گھوڑوں کی سواری کی۔ اس سے پہلے گھوڑے آزاد جنگلی جانوروں میں شمار کیے جاتے تھے۔ آپ نے انہیں پالتو بنایا اور ان کی سواری کی۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی حیات میں ہی حضرت اسحاق کو مقام نبوت پر فائز کر دیا اور آپ کو شام و فلسطین کے شہروں میں مقیم کنانیوں کی طرف بھیجا، جہاں آپ نے برسوں تک دعوت و تبلیغ کا کام سر انجام دیا۔ کتاب مقدس کہتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت اسحاق بحر لئی میں آ کر بس گئے، جو کہ فلسطین کے جنوب میں بسا ایک قدیم علاقہ تھا۔ جب اس سرزمین میں قحط پڑا تو آپ جرار کی طرف چلے گئے، جہاں کنانی لوگ آباد تھے۔ اس علاقے میں پہلے ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا اور اس وقت وہاں بادشاہ ابی ملک کی حکومت تھی۔ حضرت اسحاق نے یہاں اپنے والد کے کھدوائے ہوئے تمام کنوؤں کی طرف رجوع کیا تاکہ اس علاقے کو رہنے کے قابل بنا دیا جائے۔
लेकिन उन्होंने देखा कि वो तमाम कुएं मिट्टी से भर दिए गए हैं। चुनांचा हजरत इसहाक ने वो कुएं दोबारा खुदवाए और मजीद कुएं खोदते हुए बैर सबा तक पहुंच गए, जहां उन्होंने बादशाह अबी मलक के साथ मुआहदा किया और ये इलाका अब आले इब्राहिम के ज़ेर तसल्लुत आ गया। जूइश लिटरेचर की बात करें तो यहूदियों की तफासीर में इसहाक अलैहिस्सलाम को वही फर्जंद माना जाता है जिसे हजरत इब्राहिम मोरिया के पहाड़ों पर ज़बह करने के लिए ले गए थे। लिहाजा यहूदी इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बीउल्लाह नहीं मानते, बल्कि इसहाक अलैहिस्सलाम को ही द चूजन सन करार देते हैं। यहूदी किताबों में हजरत इसहाक के बुढ़ापे में अंधे हो जाने को भी कुर्बानी के वाक़े से जोड़ा गया है। अहदनामा कदीम के मुताबिक जब हजरत इसहाक को कुर्बानी के लिए बांधा गया तो उस वक्त वहां मौजूद फरिश्ते के आंसू हजरत इसहाक की आंखों पर गिरे, जिसकी वजह से बाद में उनके आंखों की रोशनी खत्म हो गई थी। लेकिन हजरत इसहाक को ज़बीउल्लाह करार देना यहूद व नसारा की सरासर तहरीफ है और लफ्ज़ इसहाक उनकी तरफ से तौरेत में इजाफा है, जो झूठ और बोहतान के सिवा कुछ भी नहीं। इसका मकसद अहले अरब से बनी इसराइल का हसद है। अल्लाह ने जब ज़बह का हुक्म फरमाया तो उस वक्त सिर्फ इस्माइल अलैहिस्सलाम ही हजरत इब्राहिम के इकलौते बेटे थे। बनी इसराइल अहले अरब से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि अहले अरब हजरत इस्माइल की नस्ल से हैं और इस नस्ल में सबसे अफजल और बुलंद मर्तबा पाने वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत इब्राहिम से खुदावंद ने यह वादा फरमाया था कि उनकी औलादें जमीन की वारिस बनेंगी और खूब फले फूलेंगी। ये वादा हजरत इसहाक के जरिया पूरा होना था। लिहाजा मशहूर रिवायत है कि एक रात हजरत इसहाक ने ख्वाब में देखा कि आपके पीठ से एक बहुत बड़ा दरख्त निकला, जिसकी बहुत सारी टहनियां और शाखें हैं। हर टहनी पर एक नूर है। आपको ख्वाब में बताया गया कि ये टहनियां आपकी औलादें हैं और उनमें से ज्यादातर पैगंबर हैं। आप बेदार हुए और अपनी ज़ौजा को इस ख्वाब के मुतालिक बताया तो वो कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, मैं हमल से हूं और मुझे लगता है कि मेरे बतन में 2 बच्चे हैं। लिहाजा अल्लाह ने इसहाक अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, मैं तुम्हारी ज़ौजा के बतन से 2 उम्मतें पैदा करूंगा। लिहाजा मुद्दत पूरी हुई और आपके यहाँ जुड़वा बेटे पैदा हुए, जिनका नाम ईस और याकूब रखा गया। हजरत इसहाक ने अपने दोनों बेटों को दुआ दी कि ये देगर कबाइल पर गालिब रहें, उनके रिज्क और औलाद में बरकत हो और जमीन उनकी औलादों से भर जाए। तौरेत में दोनों भाई ईस और याकूब के मुतालिक एक वाकया दर्ज है, जिसके मुताबिक जब हजरत इसहाक इंतहाई बूढ़े और कमजोर हो गए तो ये चाहा कि अपने बेटे ईस को बरकत दे। उन्होंने ईस से कहा, जा और शिकार करके ला और उम्दा खाना पकाकर मेरे सामने पेश कर। इसहाक अलैहिस्सलाम की बीवी रफ़का ने जब ये सुना तो चाहा कि ये बरकत याकूब को मिले। उन्होंने फौरन हजरत याकूब को बुलाकर कहा कि जल्दी उम्दा खाना तैयार करो और अपने वालिद के सामने ले जाओ और उनसे खैर बरकत की दुआएं लो। लिहाजा हजरत याकूब ने ऐसा ही किया और लजीज खाना पकाकर हजरत इसहाक को खिलाया। इसहाक अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत दुआएं दी। जब ईस जंगल से शिकार करके वापस लौटे और ये मंजर देखा तो इंतहाई नागवारी महसूस की और उनके दिल में अपने ही भाई के लिए कीना और बुग़्ज़ पनपने लगा। तब बीबी रफ़का ने हजरत याकूब को मशवरा दिया कि वो यहां से अपने मामू लाबान के पास हर्रान चले जाएं। चुनांचा हजरत याकूब अपने मामू के यहां पहुंच गए और कुछ मुद्दत तक वहीं रहे। आपने लाबान की दोनों बेटियों लिया और राहील से शादी कर ली। फिर 20 बरस के बाद हजरत याकूब घर वापस आए और अपने भाई ईस के साथ सुलह कर ली। उस वक्त हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की उम्र
180 साल थी। बुढ़ापे के आखिरी दौर में इसहाक अलैहिस्सलाम की बहुत सी औलादें और पोते पोतियां थी और बेशुमार गाय, ऊंट, भेड़, बकरियां और जमीनें थी, क्योंकि अल्लाह ने आपके माल औलाद में बहुत बरकत अता की थी। तौरेत के मुताबिक आखिरी उम्र में हजरत इसहाक की आंखों की बीनाई जाती रही थी और वो देख नहीं सकते थे। इसहाक अलैहिस्सलाम ने 180 बरस की उम्र पाई और वसीयत के मुताबिक जब आपकी वफात हुई तो आपको बैतुल मुकद्दस के उस हिस्से में दफन किया गया जिसे हजरत इब्राहीम ने खरीदा था और जहां खुद हजरत इब्राहीम और बीबी सारा की तदफीन हुई थी। हजरत इसहाक को अल्लाह की तरफ से माल, मवेशी और औलादों की बरकत अता होना हमें यह अजीम सबक देता है कि तमाम तर नेमतें अल्लाह की तरफ से ही अता होती हैं और इसका राज इताअत, सब्र और तकवा है। इसहाक अलैहिस्सलाम की सीरत हमें यह सिखाती है कि दौलत और औलाद खुद मकसद नहीं बल्कि अमानत है। अगर ये नेमतें शुक्र, अदल और अल्लाह की राह में इस्तेमाल हो तो यही नेमतें इंसान के लिए कामयाबी का जरिया बन जाती हैं।